think this film is covering many terror stories. Making a film based on a book, and in the book, Khatana sir has written many incidences which has happened in the country. तो यहाँ पे हम कुछ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं. This is a thought provoking film. डबल थॉट्स हाँ करने से पहले आई ऑलवेज से कि आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिसर्स की जो फैमिलीज होती है वो भी उतनी ही पेट्रियाटिक होती है. बचपन से हमेशा एक ख्वाब था कि डिफेंस सर्विसेज में जाऊंगा, लेकिन रियल लाइफ में जब भी मौका आता है यूनिफॉर्म में अगर कोई किरदार है तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट. मैंने गुंजन सक्सेना भी की थी. तो नेवी में कब देख रहे हैं इसके बाद? मे बी सून. Brings tears in my eyes. You know, there are always goosebumps. Recorded Marathi accent, which I had, by the way, really worked hard on not to bring it. I unlearned a few things and learned new things. I can say, I can put it that way. हर किरदार कुछ न कुछ तो सिखाता ही है. सैल्यूट टू दोज पीपल. एक अलग सी रिस्पेक्ट, बिकॉज वो आती ही आती है, वो हमेशा से रही है, लेकिन आप कुछ रियलाइज करते हो एज एन एक्टर, आप बहुत करीब चले जाते हो. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के बीच में एक इंडियन आर्मी ऑफिसर फंस गया है मैच फिक्सिंग की वजह से. अब आप सोच रहे होंगे मैच फिक्सिंग की वजह से इन सब के बीच में कैसे फंस गया है? क्यों? क्योंकि मैच फिक्सिंग सिर्फ प्लेग्राउंड में नहीं होती है, पॉलिटिकल ग्राउंड में भी होती है. और वो कैसे, ये 10 जनवरी को आप भी जानने वाले हैं, मैं भी जानने वाली हूँ. और इस पर बात करने के लिए आई हैव विद मी केदार, विनीत, हाय, हेलो 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 हेलो, हाय, अनुजा एंड पल्लवी जी. सबसे पहले तो कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया. एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया. But मैं- nervous. नर्वस? व्हाई नर्वस? Yeah, it's releasing on 10th and how people will take it. ओके, कोई नहीं, आपकी नर्वसनेस को दिल्ली की ठंड जो है वो चिल कर देगी एकदम. आप एकदम रिलैक्स होके बैठो. सबसे पहले तो मुझे ये जानना है पल्लवी जी आपसे और सर आपसे कि हाउ दिस टाइम द टेरर स्टोरी इज डिफरेंट जो हम पिछली बार स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं उनसे. Should I? I think this film is covering many terror stories and more than that, the term saffron terror. ये टर्म पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये टर्म कैसे स्प्रेड की गई, हाउ इट वाज falsely put forward and why it was put forward. So I think that is more of the thing which we are trying to put in the film, the false narrative of the word saffron terror. ओके, अच्छा, नाम मैच फिक्सिंग ही क्यों? That is because, see, we did not, when I started having meetings with writers, my thing was this film should not come across as a propaganda film or any right wing or left wing film. We are, making a film based on a book, and in the book, Khatana sir has written many incidences which has happened in the country, and he has taken the inspiration. Although the book is a fiction, film is a fiction, but there are some real life incidences which has happened in the film. And my thought process was, without getting into any left wing or right wing, let this film be a very good film on its own. People should talk about its screenplay, its actors, its the technicalities of it, rather than getting into too much political scenario. So when everything, we decided that we will take another path. Why not title? I could have called it Saffron Terror, Bhagwa Atang, this, that, anything. But I thought maybe that will be too direct or, too obvious. And I personally that's not my choice. So there are some incidences in the film which, once you see the film, you will realize that they shouldn't have happened. Because intelligence department had given the files, given the information to the concerned departments, and still things happened. So now we asked a question to ourselves, whether was it a match which was fixed between two countries? That is how the title came up. ओके, ग्रेट. अच्छा पल्लवी जी, इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो कब शुरू हुई कि हाँ ये बनाना है, स्क्रीन पे लाना है, लोगों को दिखाना है? Okay,
We really wanted something to do about how this word saffron terror came out, and I was reading many books. तो RVS मणि जी की किताब मेरे सामने आई, and when I was googling on a Kindle, there was this book named The Game Behind Saffron Terror, written by Kanwar Khatana. And I just googled, I got that book because it is a very interesting title, The Game Behind Saffron Terror. And I could actually see a story into it, and I was like कि अच्छा ये अभी तक किसी ने इसके rights लिए नहीं है, why not I have it? And rather than putting the things just like that, it had that two things into it, I should say, as per Bharat Muni's Natya Shastra. Anything which you are showing to the audience should have a entertainment and instruction. तो यहाँ पे हम कुछ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं. दिस इज अ थॉट प्रोवोकिंग फिल्म दैट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि हमारी देश में क्या हुआ था. ओके. अच्छा विनीत एंड अनुजा, क्योंकि कहानी जो है ट्रेलर से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन वही बात है कि प्रोवोकिंग भी लग रही है कहीं ना कहीं. तो एनी डबल थॉट्स हाँ करने से पहले? No, I didn't. Basically, I know Kedar for more than 13 years now, and मैंने अपनी करियर की सबसे पहली मराठी फिल्म केदार के साथ शूट की थी, जिसका DOP केदार था. तो I have known him since then. और when he called me and he told me कि ये कहानी है, I immediately said yes. एक तो what touched me was my character per se. मैं थोड़ी सी I was also selfish. I am selfish actor. मैंने वही सोचा पहले कि मुझे इसमें करने के लिए क्या है ना. तो I really felt वो इमोशन मुझे बहुत टच हुई. एंड आई ऑलवेज से कि आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस की ऑफिसर्स की जो फैमिलीज़ होती है वो भी उतनी ही पेट्रियाटिक होती है. तो इफ़ यू सीन द ट्रेलर, देर इज़ वन लाइन दैट आई से दैट ही इज़ अ डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, नॉट अ टेररिस्ट. सो इट रियली टच्ड मी कि अगर इतनी देशभक्ति अगर किसी फैमिली में है और अगर किसी को टेररिस्ट माना जाता है गलत तरीके से, तो उस फैमिली का क्या होगा, यू नो. दैट रियली टच्ड मी. ओके. विनीत, आपका क्या थॉट प्रोसेस था? या मैं ना बचपन से हमेशा एक ख्वाब था कि डिफेंस सर्विसेज में जाऊंगा व्हेन आई वाज किड. बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आती हैं, फिर बहुत क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, एंड आई रियलाइज्ड कि नहीं, एक्टिंग इज़ समथिंग जो नेचुरली होता है. सो इवेंचुअली आई लैंडेड हियर. वैसे कभी ट्राई किया जाने का थोड़ा बहुत? हाँ, कोशिश थी मेरी, बट बहुत पहले ये एहसास हो गया कि आई एम गुड इन दिस, और ये नेचुरली होती है चीज़ एज एन एक्टर, और मुझे उसमें मज़ा आता है. तो मैंने इसको अपना प्रोफेशन चुना. तो रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन रियल लाइफ में जब भी मौका आता है, यूनिफॉर्म में अगर कोई किरदार है तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट. मैंने गुंजन सक्सेना भी की थी, तो वो एयरफोर्स पे है वो फिल्म बेस्ड, एंड दिस टाइम दिस आर्मी का जो किरदार है अविनाश पटवर्धन का, एंड ये character is very layered, complexed. There are lots of shades. जैसा अनुजा ने बोला, पर्सनल लाइफ भी बहुत जो ह्यूमन साइड होती है वो भी देखने को आपको मिलता है. जो एक आम आदमी अपनी फैमिली से कैसे जुड़ा होता है, और एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड ही हैव. और जो किरदार है वो आर्मी इंटेलिजेंस में है, तो वो फील्ड में अंडर कवर फंक्शन करता है. तो एज एन एक्टर एक और अपॉर्चुनिटी ये थी कि एक ही फिल्म के अंदर आपको कई सारे किरदार करने को मिलेंगे. एक एक्टर को और क्या चाहिए. ओके. तो फिर हम आपको नेवी में कब देख रहे हैं इसके बाद? मे बी सारा कुछ तो हो ही गया, नेवी बचा है. बिल्कुल. ओके. बिल्कुल नहीं, उसके बाद तो पैरामिलिट्री है. आई डू सो मेनी थिंग्स. नहीं, but even for female actors we do have that ये यार, मतलब कि even I would love to play an army officer
or a raw agent. I would love to do that. I would love to do all that action. Yeah, Kedar, Okay, take पर it seriously. ये बहुत पैशनेट ये है, बहुत- इनका वहाँ सपना रह गया हाँ। तो ये सारा फिल्म में कर रहे हैं, हाँ। ब्लैक कैट कमांडो वांडो सब ये एक्टर्स को ये ब्लेसिंग है जो मैं हाँ। बार बार बोलता हूँ कि वो एक ही जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी को होता है ना जाके छू के जी के आते हैं। ये बात मैं मनोज Yeah. वाजपेयी जी से पूछती हूँ जब भी मैं उनसे मिलती हूँ कि कुछ तो था ना, कहीं तो आपको पुलिस में जाना था ना। होता है ये होता है। ओके अच्छा केदार, व्हाई दीज टू फेसेस फॉर दीज रोल्स? When we came together along with the script, basically we had decided that we will remain in the boundaries of the book. So as my writer Anuj was writing the screenplay, me, Pallavi, and one of my assistants, we were sitting in the office, just three of us, and we chalked out a board. And believe you me, some of the actors that you see in the cinema today, today in our film, they were there from the day one. These two are one of them. I'll give you a simple example. Like he rightly mentioned, Gunjan Saxena. Me and my daughter have seen that film number of times, and every time in the climax, this guy brings tears in my eyes. You know, there are always goosebumps. First of all, uniform. You know, defense, and he's arguably one of the finest actor in the country today. You know. So he brings tears in my eyes every single time me and my daughter watches the film. My daughter is just 10. And, you know, things happen. You know, I'll just go one step ahead and I'll tell you, films like these select people, not the other way around. We don't select films like these, you know. So I feel chosen one. And me, Pallavi, and one of my assistants, Santosh, when we sat together, when we started discussing who the actors should be, I'll tell you exactly why, Vinith. Apart from Gunjan Saxena, he has very unique quality about him. He's a very flexible actor. When you see him in a civil dress or uniform or normal clothes, he will get mixed in the people. And when he wears a uniform and he walks, you know, you will see in the film, you'll have goosebumps. So such kind of actors are very rare to find. Now he's playing a Maharashtrian character in the film. I thought maybe his wife's character should be a girl who's originally Maharashtrian, because even in her Hindi, there will be this Marathi accent, natural accent, which will come. And like Anuja said, we know each other since 13 years. Known devil is always better. So I know Anuja since, and she's a very fine actor. Apart from all that friendship and jazz, fantastic actor. 13 years back when I was shooting the film as a cameraman, she impressed me the most. And somewhere you have these wish lists in your mind that whenever you are directing a film, you know, you will work with these actors. All the technicians, most of the technicians were on my wish list. Most of the actors were there on my wish list. Okay. So these two definitely. ठीक है, And 10 He जन I wanted must- Marathi accent, which I had, by the way, really worked hard on not to bring it. Like when I started my Hindi career, I made sure कि वो accent नहीं आएगा. But I must thank my producers. Whatever I wished for, I got it on board. So almost 99.999% I got what I wanted. ओके ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? No, that's all. उसने वो गुगली डाल दी थी मुझ पे कि I actually want you to speak in Marathi accent, and I said, Kedar, that's impossible. That's Because gone. I've worked for 8 years to remove that accent, and finally I've achieved it, and now you're asking me to bring it back, which was like a banter between चैलेंजिंग, us. कुछ चैलेंज तो Yeah. होना ही चाहिए, इस तरह की Yeah. फिल्म करें तो स्पेशली Yeah. होना चाहिए। अच्छा, आप दोनों के अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ एज एन एक्टर, कितना आपने इस कैरेक्टर को अपनी तरफ से दिया है, अपने अपने कैरेक्टर्स को, और अपने अपने कैरेक्टर से इस मूवी के क्या क्या लिया है, क्या क्या सीखा है? I have always felt that God has been kind, that I've always got very strong parts in terms of the human touch. जो एक strength होती है ना हर कैरेक्टर की, तो ये
अनुराधा पटवर्धन का कैरेक्टर आपको दिखेगी वो आर्मी वाइफ, बट शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. बिकॉज अगर अगर किसी भी औरत में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो शी विल नॉट बी एबल टू पुट अप विथ the I'm not allowed to say the bad word, but whatever is going on around her with her own husband. So वो strength ज़रूर I find that I can connect with that strength because I myself am a strong woman and a very strong personality. तो वो मैं ज़रूर connect कर पाती हूँ उसके साथ. And what I learned I unlearned a few things and learned new things. I can put it that way. Yeah, I should say over here when the scenes were written, I remember Anuj ने कहीं पर ऐसा लिखा था कि the wife cries or something. I said no, she won't cry. And then we made those changes, I guess कि वो नहीं रोएगी. मैंने कहा नहीं रोएगी. They are very strong. Yeah. So she's the strength behind the army officer. Because of her support, he is able to do whatever things he's doing for the country. Okay, Vineet. हर किरदार कुछ न कुछ तो सिखाता ही है. वही, हाँ. वो काम करने के प्रोसेस में वो चीज़ें आपके समझ में आती हैं. लाइक अविनाश पटवर्धन के कैरेक्टर में व्हेन दिस कैरेक्टर वाज इन फील्ड अंडर कवर, तो जब वो कर रहा था तो मुझे एक वो सेंस, बिकॉज वी वर शूटिंग इन कश्मीर, और फिल्म देखेंगे तो वो समझ में आएगा मैं कौन सा पोर्शन है जिसकी बात कर रहा हूँ. तो अंडर कवर इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे फील्ड में जो रियल लोग हैं, जब उनके बारे में मैं सोचने लगा, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग दैट, तो मुझे ये लगा कि यार मैं अगर कुछ ऊपर नीचे मुझसे होता है तो मेरे पास दूसरा टेक है. बट जो इस समय फील्ड में कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनका कवर एक्सपोज हो गया तो उनके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, शायद दूसरी लाइफ भी ना मिले, यू नो. तो सल्यूट टू दोज पीपल. एक अलग सी रिस्पेक्ट, बिकॉज वो आती है, वो हमेशा से रही है, लेकिन आप कुछ रियलाइज़ करते हो एज एन एक्टर, आप बहुत करीब चले जाते हो उस स्टेट ऑफ माइंड के. तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा उस मोमेंट में कि भाई वो जो भी लोग हैं वो महान है. जो लोग भी ये काम कर रहे हैं दे आर, मतलब अपना काम तो ये है कि भाई एज एन एक्टर हम जाते हैं अपने लिए. अनुज ने जो राइटर हैं लाइंस लिख दी है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, को एक्टर है, उसके बीच में मैं अपना किरदार करके जाता हूँ. लोग पैसा देते हैं और फिल्म देखते हैं और हमें पहचानते भी हैं, तो कितना कुछ हमें मिलता है, ठीक है. लेकिन जो फील्ड में अंडर कवर काम कर रहा है, जो अपनी खुद की ही आइडेंटिटी को हाइड करके काम कर रहा है, मतलब एक्चुअली दे आर द रियल हीरोज. वैसे आपने अब तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड किससे फील करते हैं और क्यों? मैं जिस समय जिस किरदार के साथ होता हूँ उसी से मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अच्छा, पर वैसे कभी तसल्ली से बैठ के सोचते हो कि मैंने वो किया यार, वो वाला जो कैरेक्टर था कहीं थोड़ा सा उससे मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, या फिर टची ज्यादा फील किया उसे करते वक्त? सी डिपेंड करता है. करते समय कई बार कोई एक सीन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिट कर जाते हैं, वो होता है. और डिपेंड करता है एज एन एक्टर मैंने क्या चुना है. मैंने एक फिल्म की थी सिया, वो रेप विक्टिम के ऊपर थी, और मेरा जो किरदार था वो सिर्फ खड़ा रहता है उसके साथ. एक पूजा पांडे एक्टर है एंड शी इज़ रियली टैलेंटेड एक्टर, यंग. तो सिया करते समय मुझे रियलाइज़ हुआ, बिकॉज रेप विक्टिम कैसी मनोदशा से गुजरते हैं, यू नो. मुझे लगा भाई, और आजकल अक्सर देखने को मिल जाता है, हम लोग एक न्यूज़ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन जिसके साथ हुआ उसे पूरी जिंदगी उस दंश के साथ जीना है. तो मैं तो फाइटर मानता हूँ उन सब लोगों को जो ऐसे किसी अनुभव के बाद वो लड़ाई लड़ते हैं और आगे आते हैं और दूसरों को भी गाइड करते हैं.
तो फिल्म करते समय बहुत सारा मोमेंट ऐसा, ऑल्दो ठीक है, हर किरदार जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो होता है। अब मुक्काबाज में एक स्पोर्ट्समैन किस प्रोसेस से गुजरता है, बिकॉज एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ बड़ी मतलब करियर के हिसाब से वो छोटी सी होती है। अगर वो चूक गए तो फिर मतलब आप अगर आ गए तो आपके चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं ना। करेक्ट। अच्छा, केदार एंड पल्लवी जी, स्क्रीन राइटिंग कितनी मोल्ड की गई है बुक के मुकाबले? Not much, not much. See, what has happened is when you write a book, you probably write linear story from A to Z. When you're making a film, I personally like, as an audience, non-linear pattern. So we try to follow that. But book को छोड़ के हमने ज़्यादा नहीं किया है. ओके, ठीक है। I think they have broken many rules of the screenplay. ग्रेट, 10 जनवरी को हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, लास्टली वाइंड अप करने से पहले आपका जो ट्रेलर है मैच फिक्सिंग का, उसके कमेंट्स में मैं गई, बड़े सारे कमेंट थे, सिनेमेटोग्राफी की बहुत तारीफ हुई थी, आपकी सबकी बहुत तारीफ थी, ऐसा जो सब्जेक्ट है वो लाने की बहुत तारीफ थी। उन सब के बीच में ना एक कमेंट था जो मुझे बड़ा इंट्रीग कर गया, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मुझे आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर जानना है, बिकॉज यू ऑल आर कनेक्टेड टू दिस फिल्म। एक शख्स ने लिखा था, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इन मासेस। आप क्या सोचते हैं? In my opinion, a good film is a good film. You know, एक सिनेमा होता है जिसकी स्टोरी होती है, और वो फिल्म देखने के बाद ही दर्शक डिसाइड कर पाएंगे whether they like the film or they did not like the film. जस्ट ट्रेलर देख के अगर आपने मन बना लिया हो तो you know, we are a society of people who like to judge a lot. You know, so my appeal to audience is, please watch the film, and then all of us are ready for good, bad, ugly, whatever they have to say. But please watch the film in the theater, because it's a theatrical experience. Like I was saying, we've shot in 3 countries, 6 locations: Mumbai, Pune, Lucknow, Jammu Kashmir, London and Istanbul. So it's a cinematic experience which they shouldn't miss. Okay, Vineet and Anuja, what do you guys think? Is India ready for critical thinking in masses? सी बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी संख्या है। हम लोग जनसंख्या के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो नंबर 1 पे हैं, और देश में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, तो भारत सब मिला के बनता है। फिल्म की अगर बात करूं तो मुझे लगता है एक बार देख लीजिए, फिर बात किया जाए। ओके, या ठीक है। पल्लवी जी? I would say that the film is like the people need to see rather than what they would like to see. So they should go. This was and, good. Yeah, the film is made because they need to know few things, so they need to see this. And I partly agree with this comment. Not particularly only related to our film, but I would say that it's always good to have a different perspective of looking at things. आपके पास थोड़े multiple perspectives हो तो you can judge better. या And for that definitely people will have to watch the film. तब मेरा भी ये टेक है, मैंने जो ट्रेलर देखा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि किसी को सोचने पे ही मजबूर करना, कि सिर्फ वो सोचना ही शुरू करे, वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो आप लोग कर रहे हैं। बाकी 10 जनवरी को पता लगेगा कि कितना बढ़िया काम सब लोगों ने किया है। ट्रेलर तो वाकई में बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा। बाकी थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई होप टू टॉक टू यू गाइज अगेन वेरी सून। So, Thank you so much. Thank you for having us.